And today we want to look at the way in which, one way at least, in which Satan seeks to find an entry into our life. इस अध्ययन में हम उस रास्ते को देखना चाहते हैं, कम से कम एक तरह से जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है. You know that the devil is out to destroy us, and if we give him any slight entry into our life in any area, he's going to take over many other areas as well. So we need to be careful. आप जानते हैं कि शैतान हमें नष्ट करने पर तुला हुआ है, और यदि हम उसे अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जरा सा भी प्रवेश देंगे तो वह कई अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लेगा. इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है. We want to turn today to 2 Corinthians and chapter 2. I want to give you a little background to what we're going to read here so that we understand this verse. आइए हम 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 वचन की ओर मुड़े. हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि हम इस वचन को समझ सके. When Paul wrote the first letter to the Christians in Corinth, he had heard there were some serious sins in that church that were not judged, and the man who was living in that sin was not disciplined. जब पौलुस ने कुरिन्थ में मसीहों को पहला पत्र लिखा तो उसने सुना था कि उस कलीसिया में कुछ गंभीर पाप थे जिनका न्याय नहीं किया गया था, और एक विशेष व्यक्ति जो उस पाप में जी रहा था उसे अनुशासित नहीं किया गया था. And so Paul wrote concerning that to the Corinthians in 1 Corinthians chapter 5 and told them the sin that man committed was so serious he needed to be put out of the church altogether. इसलिए पौलुस ने इसके बारे में कुरिन्थियों को लिखा 1 कुरिन्थियों 5 में, और उन्हें बताया कि उस व्यक्ति ने जो पाप किया है वो इतना गंभीर है कि उसे पूरी तरह से कलीसिया से बाहर करने की आवश्यकता है. Yes, it is true that some sins require that a man be disciplined so severely that he be put out or excommunicated from the church altogether. हाँ, यह सच है. कुछ पापों के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति को इतनी कठोरता से अनुशासित किया जाए कि उसे कलीसिया से पूरी तरह बाहर कर दिया जाए या बहिष्कृत कर दिया जाए. That may sound hard, but the purpose is to save his soul. And in this particular case, it did save his soul. यह कठोर लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य उसका प्राण बचाना है, और इस विशेष मामले में इसने उसके प्राण को बचाया. Because we read a little later, when Paul wrote the second letter to the Corinthians, maybe a year later, you find that the man has repented. क्योंकि हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं जब पौलुस ने कुरिन्थियों को दूसरा पत्र लिखा, शायद 1 साल बाद आप पाएंगे कि उस व्यक्ति ने मन फिराव किया था. When he was put out of the church, he realized the seriousness of sin a little more. He realized how terrible it is to be out in the darkness without fellowship. जब उसे कलीसिया से बाहर निकाला गया तो उसे पाप की गंभीरता का थोड़ा और एहसास हुआ. उसे एहसास हुआ कि संगति के बिना अंधेरे में रहना कितना भयानक है. And that brought him to repentance. As long as he was sitting in the church and breaking bread, he never realized the seriousness of sin. और इससे उसका मन फिराव हुआ. जब तक वह कलीसिया में बैठा रहा और रोटी तोड़ता रहा, उसे कभी भी पाप की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ. Some people realize the seriousness of sin only when they are put out of the church. कुछ लोगों को पाप की गंभीरता का एहसास तभी होता है जब उन्हें कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाता है. And so this man realized it, but now what was happening was that some of these Corinthian believers and elders perhaps went to the other extreme. और इस आदमी के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसे इसका एहसास हुआ. लेकिन अब जो हो रहा था वो यह था कि इनमें से कुछ कुरिन्थियन विश्वासी और अगुवे शायद दूसरे चरम पर चले गए थे. At first they were at one extreme where they tolerated sin and were first class compromisers. सबसे पहले वे एक चरम पर थे जहां उन्होंने पाप सहन किया और प्रथम श्रेणी के समझौतावादी थे. But now they went to the other extreme where they became self-righteous Pharisees, where they wouldn't even accept this man even after he had repented, had set matters right and given up his sin and given every evidence of repentance. अब वे दूसरे चरम पर चले गए जहां वे स्वधर्मी फरीसी बन गए. उन्होंने इस व्यक्ति को तब भी स्वीकार नहीं किया जब उसने मन फिराव किया था, मामलों को सही कर लिया था, अपने पाप छोड़ दिए थे और मन फिराव का हर सबूत दे दिया था. They still would not accept him. वे फिर भी उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे. And so Paul had to write to them again. इसलिए पौलुस को उन्हें फिर से लिखना पड़ा.
And he wrote in 2 Corinthians chapter 2. और उसने दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय में लिखा, He said, whom you forgive anything, I also forgive. जिसका तुम कुछ भी क्षमा करते हो मैं भी उसे क्षमा करता हूँ. For indeed what I have forgiven, if I have forgiven anything, I did it for your sakes in the presence of Christ. क्योंकि मैंने जो कुछ क्षमा किया है, यदि मैंने कुछ भी क्षमा किया है तो वो तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए किया है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में. So he says, now this man, he has already suffered a punishment. Verse 6, sufficient for such a one, 2 Corinthians 2:6, is this punishment which is inflicted by the majority. तो वो कहता है कि यह व्यक्ति पहले ही सजा भुगत चुका है. ऐसे व्यक्ति के लिए यह सजा काफी है जो बहुमत द्वारा दी गई है. What is the punishment? The punishment was that the people in the church would have no more fellowship with them. सजा क्या थी? सजा यह थी कि कलीसिया के लोगों की उसके साथ कोई संगति नहीं रहेगी. He says, okay, he experienced that for a whole year now. अब उसे 1 साल तक इसका अनुभव हुआ. Now, what should you do? अब आपको क्या करना चाहिए? You should forgive him and comfort him, आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए और उसे सांत्वना देनी चाहिए, lest somehow he be overwhelmed by excessive sorrow. कहीं ऐसा ना हो कि वह अत्यधिक दुख से दब जाए. So he says, forgive him now and receive him because he is really repentant. तो वह कहता है कि अब उसे क्षमा कर दो और उसे स्वीकार कर लो क्योंकि उसने वास्तव में मन फिराव किया है. And even though he's brought a bad name to the church in the past, now he's repented. Forgive him. यद्यपि उसने अतीत में कलीसिया को बदनाम किया था, चूंकि अब उसने मन फिराव हुआ है, उसे क्षमा कर दो. And then Paul says these words in verse 11. In order that no advantage be taken of us by Satan, for we are not ignorant of Satan's schemes. क्योंकि अब उसे मन फिराव हुआ है, उसे क्षमा कर दो. तब पौलुस वचन 11 में ये शब्द कहता है, ताकि शैतान हमारा कोई लाभ न उठा सके, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनभिज्ञ नहीं है. So what do we see there? तो हम यहाँ क्या देखते हैं? We see that when you don't forgive somebody, Satan can take advantage of you. हम देखते हैं कि जब आप किसी को माफ नहीं करते हैं तो शैतान आपका फायदा उठा सकता है. That's the message we need to get from this passage. यही वो संदेश है जिसे हमें इस परिच्छेद से प्राप्त करने की आवश्यकता है. And he says, we are not ignorant of Satan's schemes. So let me urge you, don't be ignorant of Satan's wiles. और वो कहता है हम शैतान की योजनाओं से अनभिज्ञ नहीं है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ शैतान की योजना से अनभिज्ञ न रहे. We need to be more afraid of Satan as a deceiver than as a persecutor. हमें शैतान से एक उत्पीड़क के बजाय एक धोखेबाज के रूप में अधिक डरने की आवश्यकता है. Satan may try to persecute us, but that won't harm us as much as when he tries to deceive us. शैतान हम पर अत्याचार करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इससे हमें उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि जब वो हमें धोखा देने की कोशिश करता है. And Satan is very, very subtle, very, very clever. शैतान बहुत सूक्ष्म, बहुत चतुर है. He will nurse in your heart and take care that you keep in your heart an unforgiving, bitter attitude towards someone so that he can finally destroy you. वो आपके हृदय को पोषित करेगा और इस बात का ख्याल रखेगा कि आप अपने हृदय में किसी के प्रति एक अक्षम्य कड़वा रवैया रखे ताकि वो अंततः आपको नष्ट कर दे. And this is far more deep-rooted than we imagine. यह हमारी कल्पना से कई अधिक गहरी जड़ जमा चुका है. The Bible speaks in Hebrews chapter 12 बाइबल इब्रानियों 12 में कहती है about a root of bitterness that can cause trouble. कड़वाहट की जड़ के बारे में जो परेशानी का कारण बन सकती है. You don't have to wait till it becomes fruit. आपको इसके फल बनने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. You know what a root is? आप जानते हैं कि जड़ क्या है. When a tree has started taking root, it's probably not even come up above the surface of the ground. Nothing is visible. जब कोई पेड़ जड़ें जमाना शुरू कर देता है तो संभवतः वह जमीन की सतह से ऊपर भी नहीं आता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. When you plant a seed in the ground, it first of all takes root before it comes up. जब आप जमीन में बीज बोते हैं तो सबसे पहले वह उगने से पहले जड़ पकड़ लेता है. And bitterness is like that. कड़वाहट ऐसी ही होती है. You've sowed something in your heart. आपने अपने हृदय में कुछ बोया है. It is beginning to take root if you don't pull it out.
is taking root. और वो जड़ पकड़ने लगा है। यदि आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो यह जड़ें जमा रहा है And it will cause a lot of trouble. और इससे बहुत परेशानी होगी। And not only that, a lot of trouble to you, first of all. इससे न केवल सबसे पहले आपको बहुत परेशानी होगी, And many people can be defiled. बल्कि कई अन्य लोग भी अपवित्र हो सकते हैं। Many people can get that infection. Because a person who's got this bitterness in his heart will go around telling other people. वो संक्रमण कई लोगों को हो सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में कड़वाहट होगी वो दूसरे लोगों को बताता फिरेगा। It's like a person who's got the chicken pox goes around giving it to others, or a person got tuberculosis goes around giving it to others. A person who's got a cold goes around giving it to others, or the flu. यह उस व्यक्ति की तरह है जिसे चिकन पॉक्स है, जो इसे दूसरे में फैलाता रहता है, या टीबी जिसे पीड़ित व्यक्ति की तरह है जो इसे दूसरों में फैलाता रहता है, या सर्दी से पीड़ित व्यक्ति इसे दूसरों को फैलाता रहता है, या ऐसा ही कुछ। You see, it's very easy to transmit this sickness. It's highly इस infectious. बीमारी को फैलाना बहुत आसान है, यह अत्यधिक संक्रामक है। And you find people who are bitter everywhere in the world. You find Christendom is full of it. आपको दुनिया में हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो कड़वाहट से भरे हैं। आप पाएंगे कि मसीह जगत भी इससे भरा हुआ है। When a man comes to you with a complaint against another, a gossiper who's talking evil of others, what is he actually got in his heart? जब कोई मनुष्य तुम्हारे पास दूसरे के विरुद्ध शिकायत लेकर आता है, चुगली करने वाला और दूसरे की बुराई करता है, तो उसके मन में क्या होता है? He's got bitterness against that उसके person. मन में उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट है। I want to say to you, dear friends, if you want to save yourself from infection, be careful about whom you listen मैं to. आपसे कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, अगर आप खुद को संक्रमण से बचाना चाहते हैं तो सावधान रहे कि आप किसकी बात सुनते हैं। Would you like to get AIDS from somebody? Oh, how careful you क्या आप are. किसी से एड्स प्राप्त करना चाहेंगे? ओह, आप कितने सावधान रहेंगे। Well, this is more serious. खैर, ये उससे भी ज्यादा गंभीर है। It can destroy you more than AIDS. यह आपको एड्स से भी अधिक नष्ट कर सकता है। Would you like to embrace a man with leprosy? क्या आप कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को गले लगाना चाहेंगे? Well, this is more serious. खैर, ये ज्यादा गंभीर है। Why do you welcome and embrace a gossiper in your home, a backbiter? आप पीठ पीछे बुराई करने वाले को अपने घर में स्वागत और आलिंगन क्यों करते हैं? एक चुगलखोर का। The Bible speaks about women who go from house to house. In 1 Timothy 5, women who go from house to house gossiping. बाइबल पहला तीमुथियुस 5 में उन महिलाओं के बारे में बताती है जो घर घर जाकर पीठ पीछे बुराई करती है। There are lots of women like that in many of our churches. हमारे कई कलीसियाओं में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। I have no hesitation in saying that every one of those women are agents of Satan. मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि उनमें से प्रत्येक महिला शैतान की प्रतिनिधि है। You not only welcome them, you give them a cup of tea and biscuits and sit and listen to whatever Satan wants to tell you through them, and you get defiled yourself. आप न केवल उनका स्वागत करते हैं, बल्कि उन्हें एक कप कॉफी या चाय और बिस्किट देते हैं और बैठते हैं, और जो कुछ भी शैतान उनके माध्यम से आपको बताना चाहता है उसे सुनते हैं, और आप स्वयं अपवित्र हो जाते हैं। And then she goes to the next house with her tale, and you also go to somebody else's house with this tale that you have heard. And Satan is multiplying his agents by the hundreds every और day. फिर वह अपनी कहानी लेकर अगले घर चली जाती है, और आप भी अपनी सुनी हुई कहानी लेकर किसी और के घर चले जाते हैं। इस प्रकार शैतान अपने प्रतिनिधियों को प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बढ़ा रहा है। Believers are doing his work for him in the church. विश्वासी कलीसिया में उसके लिए अपना काम कर रहे हैं। Satan is called the accuser of the brethren. Revelation chapter 12 and verse 10. शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में The accuser of the brethren has been cast down. भाइयों पर दोष लगाने वाले को नीचे फेंक दिया गया है। The one you are listening to who has come to your house, is he or she an accuser of the brethren? जिसकी तुम सुन रहे हो, वह जो तुम्हारे घर में आया है, वो पुरुष या स्त्री क्या भाइयों पर दोष लगाने वाले हैं? Are you an accuser of the brethren, of believers? आपके बारे में क्या आप विश्वासी भाइयों पर दोष लगाने वाले हैं? See, the point is not whether what you say is right or wrong.
मुद्दा यह नहीं है कि आप जो कहते हैं वो सही है या गलत। The Bible says here in Revelation 12:10 that Satan accuses the brothers before God. बाइबल प्रकाशित वाक्य 12:10 में कहती है कि शैतान परमेश्वर के सामने भाइयों पर दोष लगाता है। Now Satan may tell us, human beings, many lies. He is a liar. अब शैतान हमसे, मनुष्य से बहुत से झूठ कह सकता है, But he will not dare to go and tell a lie to God. वह झूठा है, परंतु वो जाकर परमेश्वर से झूठ बोलने का साहस नहीं करेगा। When Satan accuses you before God, what do you think he accuses you about? जब शैतान परमेश्वर के सामने आप पर दोष लगाता है तो आप क्या सोचते हैं कि वह आप पर क्या दोष लगाता है? Do you think he cooks up some story about something you never did and tries to bluff God with it? Satan's not such a क्या आपको fool. लगता है कि वह उस चीज के बारे में कोई कहानी गढ़ता है जो आपने कभी नहीं की और परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करता है? नहीं, शैतान इतना मूर्ख नहीं है। What he will tell God about you is what you have actually done, which was वह wrong. परमेश्वर से जो कह रहा होगा वह वास्तव में आपने क्या गलत किया है वह है। And he's watching your life pretty वो carefully. आपके जीवन को बहुत ध्यान से देख रहा है। And when you've done something wrong, he goes to God and says, see, that's what this fellow did, and it's not a और lie. जब आपने कुछ गलत किया है तो वो परमेश्वर के पास जाता है और कहता है, देखो इस व्यक्ति ने यही किया है, यह झूठ नहीं है, It is 100% यह true. 100% सच है। And the same thing he says about somebody else. See what that fellow did over there, and it's 100% true. और यही बात वो किसी और के बारे में भी कहता है, देखो उस आदमी ने वहाँ क्या किया, पुनः यह 100% सत्य है। So we see that the accusations that Satan makes before God are all 100% true, not 90%, but 100% तो true. हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर के सामने जो दोष लगाता है वे सभी 100% सत्य है, 90% नहीं बल्कि 100% सत्य है। So from that we learn another thing, that when somebody comes and tells you a tale, even if there is no exaggeration in it, and it is 100% true, that person can still be an accuser of the brethren. उससे हमें एक और महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है। जब कोई आपके पास आता है और आपको कोई कहानी सुनाता है, भले ही उसमें कोई बड़ा चढ़ाकर बात न हो और वो 100% सच हो, तब भी वो व्यक्ति भाइयों पर दोष लगाने वाला है। He is 100% in fellowship with Satan, who is the great accuser of the brethren. वह 100% शैतान के साथ संगति में है, जो भाइयों पर सबसे बड़ा दोष लगाने वाला है। And it says here, Satan does this day and night. He is a full-time worker, full-time accusing the brethren. उस वचन में कहा गया है, शैतान दिन रात ऐसा ही करता है, वह एक पूर्णकालिक कार्य करता है, भाइयों पर पूर्णकालिक दोष लगाता है। He needs agents on earth. He's got multitudes of agents among the unbelievers who are his children and his servants, but he's got a lot of agents among God's children too. उसे धरती पर प्रतिनिधियों की जरूरत है। उसके पास अविश्वासियों के बीच बहुत सारे प्रतिनिधि है जो उसके बच्चे और उसके नौकर है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों में भी उसके बहुत सारे प्रतिनिधि है। People who got some bitterness against somebody, people who haven't forgiven someone, who got a complaint against someone. वे लोग जिनके मन में किसी के प्रति कुछ कड़वाहट है, वे लोग जिन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया है, जिन्हें किसी के प्रति शिकायत है, And who go around telling tales about that person. और जो उस व्यक्ति के बारे में कहानियां सुनाते फिरते हैं। That's why the Bible says in Colossians and chapter 3, it says if anybody has a complaint against anyone, Colossians 3:13, as the Lord forgave you, you should also forgive him. इसलिए बाइबल कुलिसियों 3:13 में कहती है, यदि किसी को किसी के विरुद्ध शिकायत हो, जैसे प्रभु ने आपको क्षमा किया, तो आप भी उसे क्षमा करें। Anyone, do you have a complaint against someone? Has someone done something wrong to you? Forgive. कोई भी, क्या आपको किसी से शिकायत है? क्या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है? क्षमा करें। If you don't forgive, you'll become an agent of Satan. Very, very easy. यदि आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप बहुत आसानी से शैतान के प्रतिनिधि बन जाएंगे। You may think, no, I've forgiven. आप सोच सकते हैं, नहीं, मैंने माफ कर दिया है। But deep down, the very fact that you go to someone and tell your tale of woe and make that person feel sorry for you is an indication that you haven't really forgiven that person at all. लेकिन यह तथ्य कि आप किसी के पास जाते हैं और अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं
और उस व्यक्ति को आपके लिए खेद महसूस कराते हैं, एक संकेत है कि अपने दिल की गहराई में आपने उस व्यक्ति को बिल्कुल भी माफ नहीं किया है। And who are you destroying? You may think you're destroying that person's reputation by spreading stories और about आप him. किसे नष्ट कर रहे हैं? आप सोच सकते हैं कि आप उस व्यक्ति के बारे में कहानियां फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं। Do you know that if that person loves God and is wholehearted, God will make even the evil that you do to him work for his good and क्या sanctify आप him. जानते हैं कि यदि वो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है और पूरे दिल से है, तो ईश्वर आपके द्वारा उसके साथ की गई बुराई को भी उसकी भलाई के लिए कर देगा और उसे पवित्र कर देगा। The one who will be destroyed will be you. जो नष्ट हो रहा है वो आप हो, So get rid of तो that. उससे छुटकारा पाओ। Jesus prays for his children, for his brothers and sisters who fail. Satan accuses प्रभु them. यीशु अपने बच्चों, अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो असफल हो गए। शैतान उन पर दोष लगाता है। You can have a choice. Either fellowship with Jesus and pray for them, or fellowship with Satan and accuse आपके them. पास एक विकल्प हो सकता है, या तो प्रभु यीशु के साथ संगति करो और उनके लिए प्रार्थना करो, या शैतान के साथ संगति करो और उन पर दोष लगाओ। I hope we'll make the right choice, at least मुझे from उम्मीद है कि कम से कम आज से हम सही विकल्प चुनेंगे।